اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں سب اپنے مائکس بند کر لیں، انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ آل عمران کی we did up to آیا نمبر 25۔ انشاءاللہ today we are going to start with سورہ آل عمران آیا نمبر 26۔ آیا نمبر 26 سے آج سٹارٹ کریں گے۔ آیا نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے، آئی تھنک بچپن سے ہم لوگ یہ بولتے ہی رہتے ہیں نا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ وہ والی آیت ہے۔ تو قل یعنی کہہ دیجئے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہنا؟ یعنی لوگوں کو دعا کرنے کے لیے، اللہم اے ہمارے اللہ، یا اللہ، ٹھیک ہے نا، او اللہ، اللہم مالک الملک۔ مالک کیا ہوتا ہے؟ اونر، یعنی کہ مالک، اردو میں ہم مالک ہی کہتے ہیں، انگلش میں اونر کہیں گے، اونر آف ملک۔ ملک کیا چیز؟ آف دا ڈومینین، یعنی کہ بادشاہی کے مالک۔ دوبارہ انگلش میں بولتے ہیں سے او اللہ اونر آف دا ڈومینین، اردو میں آپ کہیں گے، آپ کہہ دیجئے یا اللہ بادشاہی کے مالک۔ تؤتی الملک من تشاء، تؤتی یو گیو، مطلب پھر پریزنٹ ٹینس ہے، فیوچر ٹینس ہے کہ آپ دیتے ہیں، یو گیو آپ ہی دیتے ہیں، الملک یعنی دا ڈومینین، من تشاء من تشاء whomsoever you will، یعنی you give the dominion to whom you will، جس کو آپ چاہیں آپ بادشاہی دیتے ہیں، آپ ہی بادشاہی دیتے ہیں جسے آپ چاہیں، ٹھیک ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، دیکھیں پہلے تو تی تھا نا، یعنی ٹو گیو، اتا یاتی ٹو گیو۔ تنزع کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون زا عین، نون زا عین، لے لینا کسی سے، نکال لینا، لے لینا، چھین لینا۔ نزع ینزع نزع، نزع ینزع نزع، اس میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں وَتَنزِعُ، اور آپ ہی ہیں جو لے لیتے ہیں، آپ چھین لیتے ہیں، الملک یعنی بادشاہی کو، ممن تشاء، ممن تشاء جس سے آپ چاہیں، and you are the one who takes away the dominion from whomsoever you will، یعنی آپ ہی کسی کو ڈومینین دیتے ہیں اور آپ ہی اس سے ڈومینین لیتے ہیں، ظاہر اللہ ہی کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، وَتُعِزُّ عزت کا لفظ ہے، اور آپ عزت دیتے ہیں جس کو، من تشاء جس کو آپ چاہتے ہیں۔ عز یعز اعزازا، اعز یعز اعزازا کون سا فارم ہے؟ فارم 4، کیونکہ اس میں دینے کا ہے، کسی اور کو دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہے اینڈ یو آنر یا یو گیو آنر ٹو ہوم یو ول، آپ عزت دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذِلُّ اذل یذل اذلالا، اذل یذل اذلالا، form 4 again۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ and you humiliate، you disgrace whom you will، اور آپ ذلت دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں۔ عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آگے پھر ہے بیدک الخیر، بید in، بید in hands، کا means yours، in your hand is what؟ خیر، خیر is good، all good، in your hand is the good، آپ ہی کے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، یہ اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انکا علی کل شیء قدیر، انکا indeed you، علی کل اوپر، upon all things، قدیر are all powerful all capable، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، قدیر ہے۔ نیکسٹ آیا بھی پڑھتے ہیں، اس سے بالکل جوائنڈ ہے وہ آیا نمبر 27۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تولجو، تولیجو یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے اندر، اس کے روٹ لیٹرز کے ہیں واو لام جیم، یعنی آپ کسی چیز کو انٹر ہونا، کسی چیز میں داخل کرنا۔ تو ہم اللہ سے وہی کہہ رہے ہیں، تولج اللیل، یو کاز ٹو انٹر دا نائٹ،
तुलिजुल लैला, you cause to enter the night fin nahar, in the day. नहार मीन्स डे, लैल मीन्स नाइट. आप ही दाखिल करते हैं रात को दिन में, आप रात को दिन में दाखिल करते हैं. यू कॉज द नाइट टू एंटर इनटू द डे, आप इस तरह करें. और ये तुलिजु का लफ्ज है, इसके रूट लेटर्स हैं वाव लाम जीम. इसको आप कहेंगे औलजा यूलिजु इलाजन, औलजा यूलिजु इलाजन, यानी कौन सा फॉर्म है, अगेन फोर, यानी आप कॉज करते हैं. व तुलिजु नहारा फिल लैल, तूली जो वही लफ्ज है, नहारा वही लफ्ज है, फिल लैल सिर्फ ऑपोजिट हो गया. एंड यू कॉज टू एंटर द डे इन द नाइट, पहले का. और आप पहले बताया आप दाखिल करते हैं रात को दिन में, अब हम कह रहे हैं आप ही दाखिल करते हैं दिन को रात में. वतुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, वतुखरिजु, खरज यखरिजु से अखरजा युखरिजु इखराजन, फॉर्म 4, अखरजा युखरिजु इखराजन. एंड यू टेक आउट, खरजा उखरिजु, अखरजा का मतलब है आप निकालते हैं. यू ब्रिंग फोर्थ, यू टेक आउट, किस चीज को, अल हई, द लिविंग. आप जिंदा को, जानदार चीज को निकालते हैं, मिनल मय्यिति, फ्रॉम द डेड, बेजान चीज से, मुर्दा चीज से. जिंदा को मुर्दे से, मुर्दे को जिंदा से निकालते हैं. जरूरी नहीं कि मुर्दा का मतलब है मुर्दा इंसान, उसका मतलब है एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. सो यू टेक आउट the living thing from the non-living and you bring out from the dead, आपके लिए from non-living, and you cause, आगे है वतुखरिजुल मय्यत मिनल मय्यत मिनल हई, and you take out the dead from the living. आप ही निकालते हैं बेजान को, पहले है आप है जानदार को, नहीं पहले क्या था, तुखरिजुल हय्या, आप जानदार को निकालते हैं बेजान से, और फिर आप ही बेजान को निकालते हैं जानदार से. वतरजुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब, वतरजुकु, एंड यू गिव प्रोविजन, आप रिस्क देते हैं, मन तशाउ, जिसको आप चाहते हैं, बिगैरि हिसाब, बगैर किसी हिसाब के, विदाउट एनी मेजर. रज़क़ा यरज़ुक़ु रिज़्क़ुन, रिस्क हम कहते हैं ना उर्दू में भी, रिस्क कहते हैं, रिस्क कहते हैं, रोजी कहते हैं. अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि आप ही रोजी देने वाले हैं, जिसको चाहे आप ही देते हैं बगैर किसी हिसाब के, यानी आप जिसको चाहे ज्यादा दें, जिसको चाहे कम दें. आते हैं अब ये दो आयतों की तफसीर देखते हैं. सबसे पहले ये था कि कुल, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कुल, और अपने मैसेंजर को, अपने रसूल को कहने के साथ साथ अल्लाह ताला अपने मैसेंजर के थ्रू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू एवरी बिलीवर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. एवरी बिलीवर में आप और मैं भी शामिल हैं. तो अल्लाह कह रहे हैं अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की, यानी आप ही मास्टर हैं. इसको जरा गौर से समझ लें. सिर्फ मालिकुल मुल्क जब हम कह देते हैं, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क जब हम ये कह देते हैं, तो हमें ये लगता है कि बस ये सब डोमिनियन के मालिक हैं. इसका मतलब पूरा क्या हुआ? इसका मतलब ये, यू आर दी ओनली मास्टर, यू आर दी ओनली वन विच हैज नो इक्वल्स, जिसका कोई शरीक नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई बराबर नहीं, कोई राइवल नहीं है. यू आर दी ओनली वन जो पूरी ह्यूमन लाइफ को, पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, और जो कुछ भी होता है वो आपकी मर्जी से होता है, और जो कुछ नहीं होता है उसका मतलब है कि वो आपकी मर्जी नहीं थी. जब आपकी मर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा. अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है. फिर हम कहते हैं, यही अल्लाह ताला में सिखा रहे हैं, कहो तो तिल मुल्क मंतशा व तंज़िउल मुल्क मंतशा, यानी आप ही हैं जो तुती, आप देने वाले. हमने वहाब का पढ़ा था, याद है, देने वाले. यू आर द गिवर, यू आर द वहाब. आप देते हैं जिसको चाहे अपनी डोमिनियन का हिस्सा, और आप ही लेने वाले हैं, आप ही लेते हैं जिससे आपको लेना हो. तो आपका ये एब्सोल्यूट राइट है, ये क्यों, आप ही क्रिएटर हैं, सब चीज आपका, आपकी मर्जी है, आप जिसको जो दें और जिससे जो लें. कितनी सिंपल सी बात है. हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? हम कौन होते कहने वाले कि फलां को ज्यादा मिला, मुझे कम मिला? हम ये तो नहीं कहते फलां को कम मिला, मुझे क्यों ज्यादा मिला, ये तो हम नहीं कहते हैं ना. वो क्यों गरीब है, हम क्यों अमीर है, नहीं, हम नहीं कहते. हम कहते हैं हाँ वो हमसे ज्यादा अमीर है, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास वो घर है. तो अल्लाह ताला जब देते हैं किसी को तो भी फुल जस्टिस से देते हैं, और जब अल्लाह ताला किसी से लेते हैं तो भी फुल जस्टिस से लेते हैं. अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करते हैं, अल्लाह ताला इंसाफ करते हैं. फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम कहते हैं बतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, यानी अल्लाह आप ही हैं जो जिसको चाहे इज्जत देते हैं, और आप ही हैं जो जिसको चाहे जिल्लत देते हैं. तो जब आप किसी को इज्जत देते हैं वो भी आपकी फुल जस्टिस है, और जब आप किसी को जिल्लत देते हैं वो भी आप ही का फुल इंसाफ है.
अल्लाह ताला नाइंसाफी नहीं करता है. बियदिकल खैर, आपके हाथ में तमाम खैर है, तमाम ऑल गुडनेस इज इन योर हैंड्स. अगर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी उम्मत दी कि वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई है, वो किसका कमाल है? वो अल्लाह का करम है, देने वाला अल्लाह ही है. तो अल्लाह ने जो उनको दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम इतनी गुडनेस, इतनी बड़ी उम्मत, वो अल्लाह ने इंसाफ से दिया और अपनी मर्जी से दिया. फिर है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, आपके पास ही फुल पावर है, आपके पास ही फुल कंट्रोल है. योर पावर इज एब्सोल्यूट, यू हैव फुल कंट्रोल. आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आप इसको इधर से उधर पास करें किसी जजमेंट के लिए, किसी कोर्ट में लेके जाएं, किसी असेंबली में लेके जाएं, किसी कांग्रेस में लेके जाएं कि भाई इसको पास करो कि ये सही है कि नहीं. अल्लाह की जजमेंट है. अल्लाह इज द किंग ऑफ किंग्स. किसी के पास इतना पावर नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म को चेंज करे, अल्लाह के विल के अगेंस्ट कोई चेंज करे. आया नंबर 27 में इसी का अल्लाह ताला ने हमको फिनोमेनन बताया कि किस तरह इस दुनिया में जो चीजें, हमने तो ये जुबानी बात कर दी ना, इज्जत देना देना. अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो तुलिजुल लैला फिन नहार, अब ये अल्लाह ताला अपनी सुपरविजन में बता रहे हैं कि हम सबको बता रहे हैं कि ऑल द अफेयर्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द यूनिवर्स किस तरह होता है, जो अल्लाह की सुपरविजन में होता है और अल्लाह के हुक्म से होता है. यानी ये जो यूनिवर्सल फिनोमेना है, ये जो दिन का और रात का और आना जाना, ये सब भी हमारी अटेंशन के लिए अल्लाह ताला में बता रहे हैं कि देखें ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अल्लाह के हुक्म से हो रहे हैं. रात दिन में आती, रात दिन में घुसता है, दिन रात, रात दिन में घुसती है, दिन रात में घुसता है. यानी ये ऑल्टरनेट होते हैं, डेज और नाइट्स. आपने कभी देखा है कि 2 दिन इकट्ठे आ गए फिर 2 रातें इकट्ठी आ गई? ऐसा नहीं होगा. इसी तरह आप सिर्फ दिन रात ऑल्टरनेट नहीं करते हैं, बल्कि आपने हर दफा आप नोट करते हैं एवरी डे, जब आप अपने फजर के लिए टाइम लगाते हैं या मगरिब के लिए आप देखते हैं तो कितना होता है, डेज छोटे होते जाते हैं, डेज बड़े होते जाते हैं. शॉर्टनिंग और लेंथनिंग ऑफ डेज एंड नाइट्स कैसे होते हैं, और फिर एक वक्त आता है इक्वल हो जाते हैं. हम कहते हैं ओ आज दिन और रात बराबर हो गए. इसी तरह सीजन्स, हम सबको मालूम है. अब सब हम देख रहे थे बाहर के, ओ आज तो क्लाउडी है तो फला है, ये तो छोटा छोटा वेदर है ना. लेकिन सीजन्स आप देखें पूरे साल में, पूरे ग्लोब पर देखें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर सर्दियां हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी सर्दियां, नहीं. हर जगह आप देखें अल्लाह ताला ने पैटर्न बनाया हुआ है. हम समझते हैं ज्योग्राफिकल पैटर्न है, ये फिनोमेना है, ये साइंस ने तो नहीं बनाया ना, बनाया तो अल्लाह नहीं है, और हम इसको सिर्फ स्टडी करते हैं. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब हैव डिफरेंट वेदर्स इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. ठीक है ना. और ये कब से स्टार्ट हुआ? It started happening through, it has been happening throughout the years. It started when the universe was created. और कब तक चलेगा? Until the end of time. ये सब सोचें, ये क्यों हम बोल रहे हैं, क्यों अल्लाह ताला हमारा ध्यान उस तरफ ला रहे हैं. Why is he giving this example? ताकि हमें समझ आए, हमें समझ आ जाए, हम कंक्लूड कर सकें, हम ये अंडरस्टैंड करके सिर्फ एक ही अल्लाह है जो कंट्रोल करता है. बचपन में जब हम, पता नहीं आप लोगों में से किसने पाकिस्तान में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बचपन में जब इस्लामियात की बुक में पढ़ते थे तो उसमें ये होता था, अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो आपस में लड़ते. एक कहता कि आज मुझे गर्मी करना है, कहेगा सर्दी करना है, एक कहता नहीं मुझे दिन का टाइम है क्या रात. ये अल्लाह ही है जिसका पूरा निजाम है, द यूनिवर्सल फिनोमेना अल्लाह ही कंट्रोल करता है. सिमिलरली अल्लाह कहते हैं ना रात और दिन, दिन में से मतलब रात और दिन ना, कि रात और दिन तो मैंने अभी बता दिया, सॉरी, इससे अल्लाह ताला बता रहे हैं लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ के बारे में, कि ये भी तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, ये सब भी एवरी मिनट आप देखें, एवरी मिनट आप देखें कोई ना कोई बेजान चीज से जानदार चीज निकल रही है, और कोई ना कोई जानदार चीज से बेजान चीज निकल रही है. ये जो हमारे सेल्स हैं, लिविंग सेल्स जो हैं, ये खत्म भी हो जाते हैं, डाई भी हो जाते हैं, डिसअपियर भी हो जाते हैं, और न्यू लिविंग सेल्स जो आ जाते हैं वो हमारे जिस्म में काम करना शुरू कर देते हैं. हर लिविंग सेल को डेथ आती रहती है. वो डेथ जो है इट ऑल्सो क्रीप्स इनसाइड आवर बॉडी, हमारे सेल्स को भी खत्म करती है, नए सेल्स आते हैं. आप अपने मुंह पर ये हाथ लगा के देख लीजिए, डेड सेल्स पड़े हुए, कितने डेड सेल्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको थोड़ा साफ करें तो अंदर से और नए लिविंग सेल्स आ जाते हैं. एवरी सिंगल डे क्या, एवरी सिंगल मोमेंट ये हो रहा होता है, एवरी सिंगल लिविंग थिंग के साथ, सिर्फ मेरी और आपके साथ नहीं हो रहा है. इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल विच गोज ऑन थ्रू आउट डे एंड नाइट 24/7 एवरी मंथ एवरी ईयर थ्रू आउट द ईयर्स. आप देखिए प्लांट्स को ही देख, प्लांट्स में से क्या निकलता है, सीड्स निकलते हैं. सीड्स लिविंग होती हैं कि नहीं होती? सीड्स निकलती हैं, वो नॉन लिविंग होती हैं.
उसको जब आप जमीन में डालते हैं वो लिव कर रहा है, या पानी में डालते हैं, जो भी डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है, उसमें से प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। आप देखें, अंडा ही देख लें, अंडा क्या है, अंडे में से मुर्गी निकली पहले कि अंडा निकला पहले, तो मुर्गी, अंडा, बर्ड्स, फिश, ये सब चीजें क्या है, अंडे में से निकलते हैं और फिर वो अंडे देते हैं। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि कोई भी इसमें से, इस पूरे प्रोसेस में से किसी एक हिस्से को भी वो क्लेम नहीं कर सकता कि ये बाय चांस होता है। ये कंप्लीट साइकिल है, इट गोज ऑन, इट गोज ऑन एंड गोज ऑन। फिर अल्लाह ताला कहते हैं एंड ऑफ द क्या हम कहते हैं वतरज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, और आप रिस्क देते हैं, यू गिव प्रोविजन टू whomsoever you will without any measure। ये क्यों लिखा है यहाँ पर कुरान में, इसका क्या यहाँ पर अचानक ये क्यों आ गया? इसलिए कि रिस्क देने वाला अल्लाह, हम सबको मालूम है, रिस्क हमारे लिए लिखी हुई है। लेकिन ये हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ कि जो लोग जो डिसोबीडियंट थे, समझो जो अल्लाह को नहीं मान रहे थे, जो कुफार थे, वो ज्यादा अमीर थे। और ये नहीं है कि मुसलमानों में अमीर लोग नहीं थे, लेकिन जनरली ऑन द होल यहाँ तो वो क्या हो रहा था कि लोग थोड़े से परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो गया, हम अल्लाह पे ईमान ला रहे हैं, हम मुसलमान हो गए और तमाम डिप्रिवेशन, तमाम महरूमियां हमारे लिए, हम सफर कर रहे हैं परसिक्यूशन, हम सफर कर रहे हैं तमाम जुल्म, तशद्दुद, टॉर्मेंट, सब कुछ हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? जबकि जो लोग अल्लाह को नहीं मान रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं ला, वो तो मजे से फिर रहे हैं, उनको तो इतनी रिस्क दी है। तो ये चीजें जब कंट्रास्टिंग स्टेट्स हो गए दोनों ग्रुप्स की, तो नेचुरली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? नेचुरली ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, और जो अल्लाह के नाफरमान है उनके पास कम होना चाहिए। तो लोगों के दिमागों में, दिलों में ये सवाल आया, तो अल्लाह ने बताया कि वही क्रिएटर है, वही एंटायर यूनिवर्स को चलाता है, वही ओन करता है, वही सस्टेन करता है, वही प्लान करता है, और सबको रिस्क भी वही देता है अपनी मर्जी से। और सिर्फ वही है जो डिसाइड कर सकता है अपनी विजडम, अपने नॉलेज पे बेस्ड और अपनी मशीयत, अपने विल पे बेस्ड, किसको कितना रिस्क दे। किसी को वो अमीर बनाता है, किसी को वो गरीब बनाता है, और ये पूरे इंसाफ के साथ करता है और उसकी अपनी विजडम पे और अपने नॉलेज पे बेस्ड होता है। हम कोई नहीं है कि हम उनसे सवाल करें, जितना हमको मिला उस पर शुक्र अदा करें। आया नंबर 28, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, लेकिन आप इसको गौर से सुने, एक एक लफ्ज़ को जरा गौर से सुने। ला यत्तखिज़िल मुमिनूना, ला लेट नॉट, यत्तखिज़ी लेट नॉट टेक, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तिखाज़ुन, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तिखाज़ुन, कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 8। let not take al mu'minuna, the believers, ना पकड़े, ना बनाए ईमान वाले, अल काफिरीना औलिया, the disbelievers as औलिया। औलिया क्या चीज होता है? क्लोज फ्रेंड, क्लोज एलाइज, गार्डियंस, प्रोटेक्टिव फ्रेंड्स। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बिलीवर्स को नहीं चाहिए कि वो काफरों को अपने गार्डियंस या एलाइज, अपने औलिया बनाए। आगे मैं आती हूँ तफसीर में, बेचैन ना हो, बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ईमान वालों को ये नहीं चाहिए कि वो किसी भी कुफार काफरों को अपने बहुत क्लोज इंटीमेट फ्रेंड्स बनाए, औलिया बनाए। min dunil मुमिनीन, instead of the believers or other than the believers, मोमिनों के अलावा, मोमिनों को छोड़कर या मोमिनों पर तरजीह देके, to give priority to the कुफार over the मुमिनीन। मैं ये नहीं कह रही कि उसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ कोई अच्छा है काफिर तो आपके नहीं मैं इस मोमिन की बात, मैं उसकी नहीं, अब मैं तफसीर में जाती हूँ इंशाल्लाह। वमन यफ़अल ज़ालिका, and whoever, यफ़अल does, ज़ालिका that, and whoever does that, और जो कोई ऐसा करेगा, there's a शर्त, there's a condition, वमन यफ़अल इस्मु शर्त, whoever does that फलैसा मिनल्लाहि फी शै, फलैसा then not मिनल्लाहि from Allah फी शै in anything, यानी तो अल्लाह नहीं है अल्लाह की तरफ से किसी चीज में भी उसके लिए कुछ, इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, इल्ला एक एक्सेप्शन आई है, इल्ला एक्सेप्ट अन तत्तक़ू that you fear, मिनहुम from them तुक़ा, what is तुक़ा? as a precaution,
इत्तका यत्तकी इत्तकाउन, तत्तकु और तुका का एक ही रूट है। इत्तका मतलब वाव काफिया, इत्तका यत्तकी इत्तकाउन फॉर्म कौन सा? 8। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन कि इफ यू टेक एनीबडी दैट देन नॉट फ्रॉम अल्लाह, इफ यू टेक दी disbelievers as awliya instead of the mu'minun, तो क्या होगा? इसमें अल्लाह ताला से आपकी कोई चीज नहीं रहेगी। मैं अभी फिर तफसीर में आती हूँ। एक्सेप्ट कि आप फियर करें कोई प्रिकॉशन की वजह से, सिवाय ये कि आप डरें, आप अपना बचाव करें उनसे कोई बचाव करने के लिए। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, एंड वयुहज़्ज़िरुकुम एंड वार्न्स यू अल्लाह नफ्सहु फ्रॉम हिमसेल्फ, और डराता है अल्लाह आपको अपनी जात से। हज़्ज़रा युहज़्ज़िरु तहज़ीरन, हज़्ज़रा 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 युहज़्ज़िरु तहज़ीरन फॉर्म 2। व इलल्लाहिल मसीर, एंड टू अल्लाह इज द फाइनल रिटर्न, और अल्लाह ही की तरफ आपने लौट कर जाना है, अल्लाह ही की तरफ आपका आखिरी ठिकाना है। अब इसको आइए जरा गौर से देखते हैं कि आया नंबर 28 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, मुसलमानों को एक वार्निंग दे रहे हैं। ये वो कहते हैं कि जो मोमिनीन हैं वो अपने एलाइज, अपने क्लोज सपोर्टर्स, अपने गार्डियंस जो है वो डिसबिलीवर्स को ना ले, उनको अपने क्लोज कंपेनियन या कॉन्फिडेंट्स ना बनाए एज अपोज टू मोमिनीन। क्लोज कंपेनियंस या कॉन्फिडेंट्स लफ्ज याद रखें, ठीक है ना। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अगर एक मुसलमान रिलेशनशिप बिल्ड करता है अलायंस की, पेट्रनेज की, उस बंदे के साथ जो अल्लाह को एक मान ही नहीं रहा, who refuses to acknowledge Allah's revelation as his judge, as his arbiter in his life, तो उसकी क्या रिलेशनशिप, अल्लाह के साथ जब रिलेशनशिप क्या रहेगी? मतलब ये कितना डिसाइसिव स्टेटमेंट है। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करेगा, अगर वो बिलीवर्स के अलावा अगर वो डिसबिलीवर्स के साथ अगर वो अपना क्लोज कंपेनियनशिप रखेगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा, औलिया बनाएगा, अपना प्रोटेक्टिव फ्रेंड बनाएगा, गार्डियन बनाएगा, तो उसने अपने आप को अल्लाह की तरफ से काट लिया है, काट ली, ही इज कट हिमसेल्फ फ्रॉम अल्लाह। देयर इज नथिंग for him to do with Allah except, Allah कह रहे इल्ला except अन तत्तकु मिनहुम तुका, except के कंसेशन दे रहे हैं, एक मुस्तस्ना कर रहे हैं उन लोगों को कि जो कि किसी डेंजर में है, किसी फियर में है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी वो प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये समझ लें कि वर्बल सपोर्ट है और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए ये सपोर्ट, ये आपके लिए ये बहाना रहेगा। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ये कंसेशन जो है, दिस मस्ट नॉट बी अंडरस्टूड एज टू सीक प्रोटेक्शन थ्रू एक्टिंग इन सपोर्ट ऑफ डिसबिलीवर्स। एक्टिंग नहीं करना है, इट मस्ट बी लिमिटेड ओनली टू वर्बल स्टेटमेंट। खुद अपने आप को एक्ट नहीं करना है, एज अ डिसबिलीवर की तरह एक्ट नहीं करना है, बहुत क्लियर है। There is no concession whatsoever for a relationship of love between a believer and a disbeliever. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि एक आदमी, a man who will follow, जो करेगा अपने क्लोज फ्रेंड को वो फॉलो करेगा, उसको इतना फॉलो करेगा कि इंसान को सोच लेना चाहिए, आप सोच लीजिए कि आपने किसको अपना बहुत क्लोज फ्रेंड बनाया है। मीनिंग हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि हमारा क्लोज फ्रेंड, हम किसी के कैरेक्टर से अगर हमें अच्छा लग रहा है हम उससे मिलें, उससे बात करें, उसके साथ कांटेक्ट रखें, लेकिन अगर उसकी ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम में नहीं है, हम उसको फॉलो ना कर लें, शुरू कर दें। तो अगर उसका रिलीजियस कमिटमेंट या उसका जो कैरेक्टर है अगर हमको प्लीजिंग नहीं रखता है किसी जो कि मुसलमान नहीं है, तो फिर हमें उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनएविटेबली हम उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाए, ठीक है ना, हो सकते हैं। तो इस्लाम वैसे नहीं कहता है कि आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ काइंड ना हो, आप उससे अच्छी तरह बात ना करो, आप उसके साथ हार्श रहो। अगर वो आपके साथ कुछ अपोजिशन में नहीं आ रहा है, तो वो आपके साथ नहीं लड़ रहा है, वो आपको तंग नहीं कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर हमारा है। हमारे सब मुसलमानों के साथ, नॉन मुस्लिम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज ही मैं आपको कह रही थी अभी क्लास शुरू होने से पहले कि संडे को ओपन मॉस्क डे है, नॉन मुस्लिम्स आएंगे, मस्जिद में आएंगे, उनको मस्जिद का टूर दिया जाएगा। तो क्या ये मना है? नहीं, उनके साथ काइंड ट्रीटमेंट जरूरी है, लेकिन ये है कि काइंड ट्रीटमेंट ठीक है, लेकिन उनके साथ अलायंस नहीं करना है। समझ में आ गई? यानी जब आप उनसे सपोर्ट नहीं लेना है, उनको लॉयल्टी नहीं देनी है। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये इसका क्या मतलब हुआ, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। देखिए, हम अल्लाह को एक मान रहे हैं, वो लोग अगर नहीं मान रहे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे, हम कुरान को अपनी किताब मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे, तो हाउ इज इट पॉसिबल? आप खुद बताएं कि हम उस बंदे को लव करें,
بہت لو کریں، جو کہ اللہ کی وحدانیت میں بھی نہیں مان رہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مان رہے، جو کتاب کو بھی نہیں مان رہے. خود ہی سوچ لیں، مطلب ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں لیکن ہم ان کو لو نہیں کر سکتے. اور جیسے ہر آدمی کو لو کر لیتا ہے وہ ٹھیک ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں. پھر ایک وارننگ ہے کہ مطلب آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کے ان کے سپورٹ میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اللہ کے غصے کو نہ پکاریں، نہ للکاریں. اور وہی ہے الیک المصیر، اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے. اب یہ سب بتا کے اگین اب کوشچن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم دوستی رکھ سکتے ہیں؟ آف کورس، ہم اس کنٹری میں ہیں، ہمارے نیبرز کون ہیں؟ نان مسلم نیبرز ہیں. If we don't meet them, how can we call them to Islam? ہم دعویٰ کیسے کریں گے؟ We have to meet them. We have to interact with them. We have to deal with them nicely in the hope. اس امید میں ہم دعویٰ دیں گے وہ مسلمان. دعویٰ نہیں بھی دیں گے، ہمارا کیریکٹر ان کے سامنے ہوگا. وہ بولیں گے دیکھا یہ مسلمان ہے، اس نے مجھے کھانا بھیجا، یہ مسلمان ہے، اس نے میرے لیے ہیلپ کیا، یہ مسلمان ہے، یہ میرے لیے کھڑی ہوئی، اس نے یہ بولا، اس نے مجھے پک کیا، ڈراپ کیا، اس نے میرے لیے گروسریز لا کے دی. کیا ان کے اوپر دل پہ اثر نہیں ہوگا کہ ہم تو مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں، پروپیگنڈا سن رہے ہیں؟ وہ کیا ہوگا؟ خود بخود وہ لوگ ہماری طرف مائل ہو جائیں گے. اور کیا پتا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ مسلمان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتے ہیں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی عبادت کرو اور کوئی شرک نہیں کرو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے نزدیکی ریلیٹیوز کے ساتھ. پھر وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ. اور پھر کیا ایڈ ہوا؟ ان سب کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. والجار، جار کیا ہوتا ہے؟ نیبر. نیبر کے ساتھ ذی القربہ، جو آپ کا نیئر نیبر ہے، آپ کے گھر کے ساتھ جو رہتے ہیں. والجار الجنوب، اور جو آپ کا فردر نیبر ہے، جو آپ کے گھر سے تھوڑی دور بھی رہتے ہیں. دیکھیں قرآن میں لکھا کہ آپ نے نیبرز کے ساتھ، ہمارے نیبرز نان مسلم ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. احادیث بھی بہت ساری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھوڑی سی میں کوٹ کر دوں کیونکہ ہم ٹاپک پہ ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رپورٹ کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما زال جبریل یؤصینی بالجار حتی ظننت انہ لیورثنہ. ٹھیک ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام مجھے نصیحت کرتے کرتے، ایڈوائز کرتے کرتے رکتے ہی نہیں تھے. ما زالا، he would not stop, he would continue کہ وہ مجھے ایڈوائز کریں کہ نیبرز کے ساتھ بالجار، نیبرز کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ کرے. حتی ظننتو، یہاں تک کہ مجھے یہ سوچ آئی، مجھے یہ گمان ہونے لگا، انہو کہ وہ کہیں گے کہ یہ وراثت میں بھی ان کا حصہ ہے. مطلب وراثت میں کتنے کم لوگ ہیں، اپنے جو بالکل نزدیکی ریلیٹیوز میں بھی اگر آپ اپنی اولاد ہے، اپنے ماں باپ ہے، تو بھائی بہنوں کو بھی نہیں ملے گا. لیکن نیبرز کے لیے کہتے ہیں مجھے یہ شک ہونے لگا، مجھے گمان ہونے لگا کہ اتنا کنٹینیوسلی مجھے جبریل کہہ رہے ہیں کہ نیبرز کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرو کہ مجھے ایسے ہونے لگا کہ اب ان کو وراثت میں بھی حصہ ملنے کا حکم آ جائے گا. یہ مسلم میں، صحیح مسلم میں. ابو شرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. واللہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، بائی اللہ، لا یؤمن he does not believe، بائی اللہ وہ ایمان نہیں لایا، بائی اللہ، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، بائی اللہ. تو ان سے پوچھا گیا کہ او میسنجر آف اللہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوایقہ، یعنی وہ جس کا نیبر، جس کا پڑوسی اس کی لا یأمن، سیف نہیں ہے، امن میں نہیں ہے اس کے ایول سے، اس کے شر سے. یہ بخاری میں. اگر آپ کا نیبر آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایمان ہی نہیں لائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیبرز کے اتنی احادیث ہیں. اس وقت ہمارا نیبر کا ٹاپک نہیں، لیکن میں نے کہی 4-5 جو بہت ہی
जबरदस्त हैं, वो मैं आपको कम से कम बता दूं ताकि आपके जहन में आ जाए कि ये जो हम कहते हैं ना, क्योंकि आयत ये है ना कि कुफार को मोमिनों के सिवा आप कुफार को ज्यादा तरजीह ना दो और उनके साथ बुरा सलूक करने का कहीं भी नहीं लिखा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और बताते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बिवाइक़, यानी पहले ईमान का था, अब एग्जैक्टली वही चीज है लेकिन ये मुस्लिम में, कि वो कभी भी एंटर नहीं होगा जन्नत में जिसका पड़ोसी, जिसका नेबर इज नॉट सिक्योर फ्रॉम हिज ईविल। वो बुखारी में था, ये मुस्लिम में है। एंड वन लास्ट स्पेशली फॉर यू एंड मी एंड यू, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या निसा अल मुस्लिमात, ओ मुस्लिम women, ला तहक़िरन्ना जारतुन, do not belittle any gift for your neighbor, do not belittle any जारतुन लिजारतिहा, यानी आप कोई भी अपनी नेबर के लिए गिफ्ट जो उसको बिलिटल ना करें। वलो फिर सिना शातिन, इवन इफ इट इज द हूफ, हूफ नहीं होता जो पाए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरी पाए जो बोलते हैं, वो पाए हैं अगर वो एक शीप के, उसको भी बिलिटल नहीं करें, ये मुस्लिम में है। तो प्यारी बहनों, मुस्लिम्स हमारी, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं लेकिन उनके हमारे कॉन्फिडेंट्स नहीं हो सकते हैं, हमने उनको भेजना भी है, तोहफे भी भेजने हैं और उनसे तोहफे लेने भी, इट्स ओके, ठीक है ना, अनलेस कोई हराम चीज है। ऑब्वियसली वो हमें अगर शीप भेजेंगे और शीप के हुफ्स भेजेंगे तो वो तो हलाल नहीं होगा, लेकिन हम उनको भेज सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है ना कि इतनी छोटी सी चीज है, सीरी पाए लोग तो खाते भी नहीं है कितने लोग, तो कहते हैं अगर वो हूफ भी है, पाए से भी कम ये हूफ जो है उसका अगर वो है उससे भी बढ़ के उसकी, तो आप उसकी कभी भी उसको ह्यूमिलिएट नहीं करें, उसकी तज़हीक ना करें, ठीक है ना, उसको कम ना समझें। तो कुरान और हदीस ये क्लियर करता है कि हमने कोऑपरेट करना है हर बंदे के साथ, हर इंस्टीट्यूशन के साथ, चाहे वो किसी क्रीड का भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, एज लॉन्ग एज जो चीज है कोऑपरेशन की, दैट इज गुड एंड दैट इज राइचियस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी कहा कि अगर कुरैश जिनके साथ इतनी दुश्मनी थी, अगर वो मुझे बुलाते हैं कि मैं टाइज ऑफ किंस टू ऑफ ऑनरिंग द टाइज ऑफ किनशिप and reverencing that which is sacred, I would hasten to join them। यानी अगर कुरैश मुझे बुलाती है कि मैं हम सिला रहमी करें और हम जो चीज सेक्रेट है उसको सेक्रेट रिवेयर करें, तो वो कहते हैं तो फिर मैं हेसन करूंगा, उनको जल्दी से जल्दी उनको ज्वाइन करूंगा। तो देखें अगर ऐसा नहीं होता तो इस्लाम कैसे फैलता, अगर नॉन मुस्लिम्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होती तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन जो इस्लाम फैला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबियों के जमाने में, वो कैसे फैलता। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी एक हदीस है, ये भी बता दूं, एक जूइश लड़का था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काम करता था, लड़का था, बॉय था, यंग बॉय था, वो बीमार हो गया। जब वो बीमार हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको विजिट करने के लिए और उसके सर के पास बैठे और उसे कहा कि मुसलमान हो जाओ, मतलब उनको ये था ना कि क्या पता ये फौत हो जाए, क्या हो। तो वो जो लड़का था छोटा, उसने अपने अब्बा की तरफ देखा, उसका बाप भी जूस था जाहिर है, तो उसे कहा, उसकी तरफ देखा आंखें उठा के, तो उसके बाप ने कहा कि जो अबुल कासिम कह रहे हैं, यानी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उसको मान लो, ओबे करो। बाप भी यहूदी था, बेटा भी यहूदी था, तो वो मुसलमान हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए और इतने खुश होके कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं अल्लाह अकबर, हु हैज सेव्ड हिम फ्रॉम द फायर। ये अब देखें, जू से मुसलमान हो गया, अल्लाह ताला ने इसको आग से बचा लिया। ये बुखारी में है। एक और पॉइंट चूंकि इतना सब पढ़ने, एक और पॉइंट कि हमें कुरान और सुन्ना की जो भी बातें हैं, जो भी आयात हैं, जो भी हदीस हैं, उनको उनके, हमेशा मैं कहती हूँ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में उसको आप समझने की कोशिश करें। वी शुड नॉट टेक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लोग उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालेंगे, एक सेंटेंस निकालेंगे, बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट या नहीं देखेंगे और उसको छाप देंगे और बोलेंगे कि देखा मुसलमान ये कह रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, जबकि आया को या हदीस को कॉन्टेक्स्ट से निकालें और उसको अक्रॉस द बोर्ड हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। इसके लिए एक एग्जांपल है सूरह मुम्तहिना में, मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आया नंबर 9। अल्लाह ताला कहते हैं, इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लजीना क़ातलूकुम फिद्दीन व अखरजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इखराजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तवल्लो क्या, वली करना, अपना प्रोटेक्टिव फ्रेंड बना। इन्नमा के ओनली यनहाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला हमें
फॉरबिड करते हैं, हमें रोकते हैं, मना करते हैं किस चीज से? फ्रॉम दोज अनिल लजीना, फ्रॉम दोज क़ातलूकुम फिद्दीन, जो आपसे फाइट करते हैं दीन की वजह से, रिलीजन की वजह से, व अखरजूकुम मिन दियारिकुम, और जो आपको निकालते हैं, जिन्होंने आपको निकाला आपके घरों में से, व ज़ाहरू, और वो सपोर्ट करते हैं किस चीज को? अला इखराजिकुम, आपके निकालने को, अन तवल्लहुम, कि आप उनको अपने वली बनाए, औलिया बनाए, व मन यतवल्लहुम, और जो उनको वली बनाएगा, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, देन दोज आर द रॉन्ग डूअर्स। ये आया किस कब नाजिल हुई? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स को कुरैश मक्का फाइट कर रहे थे, मक्के में उनको घरों से निकाला जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, परसिक्यूशन चल रही थी, टॉर्चर चल रहा था, तशद्दुद जुल्म चल रहा था। तब अल्लाह ताला ने कहा जब वो आपको कत्ल कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से, अल्लाह ताला ने कहा डू नॉट मेक देम योर एलाइज। तो ये क्लियर रीजन थी, रीजन ये थी कि वो आपको मार रहे हैं, वो आपको घरों से निकाल रहे हैं तो इसलिए उनका कुफर नहीं था रीजन कि वो काफिर हैं तो उनके साथ आप बात नहीं करो, ये नहीं था। इट वाज देयर हॉस्टिलिटी टू इस्लाम, इट वाज देयर टिरेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, वो जो जुल्म और तशद्दुद कर रहे थे मुसलमानों पे। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए, इतनी हमारी समझ होनी चाहिए कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि हमारे जो नॉन मुस्लिम लोग हैं इर्द गिर्द हमारे, वो हमारे साथ हॉस्टाइल हैं कि नहीं है, वो हमारे साथ फ्रेंडली है कि हमारे साथ हॉस्टाइल है, हमें उनके साथ किस तरह ट्रीट करना चाहिए। जब उन्होंने कभी हमारे साथ हमें तंग नहीं किया, हमारे साथ हॉस्टिलिटी नहीं की, तो हमें भी उनके साथ नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्रीट देम वेल, वी मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए, किस चीज में? उनके रिलीजन में, उनके कस्टम्स में, उनकी सेलिब्रेशंस में, क्योंकि फिर हमारा ये होता है ना, आस्ते आस्ते हम उनके साथ उनके त्यौहार सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, और इसमें बहुत गड़बड़ है। और आपको पता है होता है, उनकी एंटरटेनमेंट के तरीके, उनका खाना, उनका पीना, जो हमारे लिए हराम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, वही 2-3 चीजें हैं, लेकिन वही वो खाना पीना उनको वही होगा ना, उनका ड्रेस कोड, उनका वे ऑफ लाइफ, इन सब चीजों को हमने देखना, एक्स्ट्रा कॉशियस होना है कि हम इन्फ्लुएंस ना हो जाए, इंक्लाइन ना कर जाए उनकी रिलीजन की तरफ। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए कि किस किस्म की रिलेशनशिप हमने उनके साथ रखनी है और किस किस्म की हम नहीं रख सकते हैं। एंड स्पेशली सोच लें कि हमने उन बंदे के क्लोज जा रहे हैं जो कि शिर्क भी कर रहे हैं, कुफर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आयत पे जाते हैं, आयत नंबर 29। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुबदूहु यअलमुल्लाह व यअलम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। कुल, आप कह दीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मुसलमानों से, इन तुख्फू, अगर आप छुपाएंगे, अख्फा युख्फी इख्फाउन, अख्फा युख्फी इख्फाउन, फॉर्म 4, आप कैसे, इफ यू हाइड, यानी आप कह दीजिए कि अगर आप छुपाएं, माफी सुदूरिकुम, जो कि आपके दिलों, जो कि आपके ब्रेस्ट्स में है, ब्रेस्ट का लफ्ज़ है सुदूर, कुलूब नहीं है, इधर सुदूर है, आप याद रखें, कुलूब क्या है? दिल, सुदूर क्या है? सीना, जो आपने अपने सीनों में छुपाए रखा है। आप अगर छुपाएं, सीने का लफ्ज क्यों यूज होता है? सीने में वो तमाम चीजें आ जाती हैं, उसमें सिर्फ कल्ब नहीं है, उसमें कल्ब के इर्द गिर्द भी सब चीजें, उसमें आपका रूह भी कहीं आ जाती है, सोल भी आ जाती है, हमें नहीं पता क्या क्या आ जाता, आपकी सोचें भी आ जाती होंगी। तो यही सब चीजें कि जो आपके सीनों में है, जो आपके दिल में, जो आपके इंटेंशंस है, औ तुबदूहु, और यू शो इट, और यू एक्सपोज इट, सॉरी, या आप जाहिर करें उनको। अबदा युबदी अबदा उन, अख्फा बताया था मैंने, अख्फा युख्फी इख्फाउन, वो भी फॉर्म 4 है। अबदा युबदी अबदा उन, ये भी फॉर्म 4 है। यानी तुख्फू करें या तुबदू करें, आप उसको छुपाएं या आप उसको जाहिर करें। या अल्लाह, अल्लाह नोज इट, या अल्लाह नोज इट, अल्लाह जानता है उसको, अल्लाह। वो यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, एंड ही नोज, और वो जानता है, मा फिस समावाति, व्हाट इज इन द हेवेंस, जो आसमानों में है, व मा फिल अर्द, एंड व्हाट इज इन द अर्थ, और जो जमीन में है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, एग्जैक्टली सेम जो लास्ट आयत थी, एंड अल्लाह इज अपॉन एवरीथिंग ऑल पावरफुल और केपेबल, और अल्लाह ताला ऊपर हर चीज के कादिर है, कदीर है, कादिर है, कुदरत रखने वाला है। इसकी तफसीर देखते हैं, इसमें कोई चीज नई है ही नहीं इस आयत में, ये वार्निंग्स बार बार आ रही हैं कुरान में, बार बार आ रही हैं, कंटिन्यूसली हमको वार्न किया जा रहा है कि फियर अल्लाह, और उस चीज को ना करो जो अल्लाह चाहता है कि ना करो। वट एवर अल्लाह सेज डोंट डू इट, वट एवर अल्लाह प्रोहिबिट्स उसको ना करो, और वट एवर अल्लाह डिसलाइक्स
اگر منع نہیں بھی کیا, اگر نہیں بھی پسند ہے, اللہ کو منع نہیں کیا لیکن پسند نہیں, وہ چیز نہیں کرو. تو ہمیں اس کو سیریسلی لینا ہے, ہمیں ہر وقت کانشیس رہنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز پسند کرتے ہیں, کیا چیز نہیں پسند کرتے ہیں, اور ہماری انٹینشنز اور ہمارے ایکشنز اس کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں یہ وارننگ جو ہے نا بار بار آ رہی ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, یہ ایک ہیومن بینگ کی طرف سے وارننگ نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے. اٹ از اے ریئل تھریٹ, اٹ از اے ریئل وارننگ فرام ہو, the one who is actually capable, all powerful, قدیر ہے کہ وہ ہمیں پنش کرے. تو ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکیں گے. آیا نمبر 30, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد. یوم تجد کل نفس, یوم the day, یعنی اس دن, تجدو will find, کل نفس every soul, the day, that day will find every soul. تجدو یجدو, کیا فرق ہے؟ تجدو is feminine, کیوں feminine ہے؟ soul feminine ہے, نفس feminine ہے. یا ایتہ النفس المطمئنہ, ٹھیک ہے نا, یا ایتہ النفس المطمئنہ, یاد ہے نا. تو soul جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ نفس جو ہے وہ عربک میں it is feminine. تو اس دن تجدو will find every, کل نفس every soul, اس دن پائے گا ہر نفس اپنے یا ہر شخص ما عملت, what it did. دیکھیں عملہ نہیں, عملت, عملت اگین بیکاز سول کے لیے ریفر کیا جا رہا ہے, جو اس شخص نے, جو اس سول نے. اب وہ شخص جو ہوگا وہ کوئی مرد بھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو مرد کے لیے کیا ہوگا؟ عمل آئے گا. لیکن یہاں سول کی بات ہو رہی ہے, اسی لیے اس شخص نے جو کچھ کیا, ہم شخص کہتے ہیں لیکن ایکچولی اس نفس نے جو کچھ کیا, اس کو جو عمل کیا تھا وہ اس کو پائے گا. کہاں پائے گا؟ من خیر محضرا, من خیرن یعنی جو اس نے اچھا کیا, آف دا گڈ, جو اس نے اچھا کیا, جو اس نے نیکی کی. محضرا, محضرا کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ ہا ضاد را, ہا ضاد را. جیسے ہم اردو میں نہیں کہتے حاضر, حاضر یعنی وہ پائے گا اس کو حاضر. ہم تو اس میں ضاد ہے نا, ہم اردو میں حاضر کہتے ہیں کہ بھائی حاضر ہے, وہ پائے گا, اٹ ول بی پریزنٹڈ, اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا, سمجھے. لیکن محضرہ یعنی آلریڈی پریزنٹڈ ہوگا, اس کے سامنے موجود ہوگا, اس کے سامنے حاضر کیا ہوا ہوگا, کیونکہ یہ کیا ہے؟ پیسو ہے. محضرہ یعنی پیسو ہے, اسم مفعول ہے, ٹھیک ہے, آلریڈی. تو جو کچھ نیکی کی ہوگی میں نے اور آپ نے, وہ ہمارے سامنے آلریڈی وہاں موجود ہوگا, ہمارے سامنے حاضر کیا جا چکا ہوگا, ہم اسے دیکھ لیں گے. وما عملت من سوء, اور جو کچھ بھی, وما عملت اور جو کچھ بھی ہماری سولز نے غلط کیا ہوگا, من سوء آف دا ایول یعنی برائی میں, شر میں جو عمل کیا ہوگا وہ بھی وہیں پر پائے گا. دونوں چیزیں, جو ہماری برائیاں, جو ہماری اچھائیاں, جو ہمارے سامنے وہاں پر موجود ہوں گی. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. تود, ودا یا ودو کیا چیز ہوتا ہے؟ ٹو وش, ٹو وش. ودا یا ودو ودن یعنی کہ ہم کہیں گے کاش, کاش, ہم وش کریں گے. تودو لو ان بینہما و بینہ, تودو لو, لو کا مطلب ہے if, کاش, انّا that, بینہا between her و بینہ and between it. ابھی میں ایکسپلین کرتی ہوں. it will wish, آپ کا سول جو ہے وہ وش کرے گا, وہ انسان جو ہے وہ وش کرے گا کہ between it, it کیا پر ہے؟ یعنی کہ بینہا, دیکھیں فیمیل یوز ہوا ہے یعنی اس سول کے, اینڈ و بینہ اور اس کے, یعنی کس کے درمیان؟ وہ جو برائی تھی اس کے درمیان وہ یہ تمنا کرے گا, وہ یہ آرزو کرے گا. اٹ ول وش, تودو, اٹ ول وش کہ کاش اس کے اور اس کی برائی, برے عمل کے درمیان کیا چیز ہوگا؟ امدم بعیدہ, between it and between that, وہ جو اس کی ایول ہے اس کے درمیان کیا ہے؟ were a distance big. وہ یہ وش کرے گا, وہ یہ کاش کرے گا, وہ یہ اس کی یہ خواہش ہوگی کہ it will wish کہ there was a big distance between the soul and that evil deed. امدم بعیدہ, امدن کا مطلب ہے distance, بعیدہ far, کہ there was a distance big یا far, یعنی اس کے درمیان بہت دور کا یا بہت طویل فاصلہ ہوتا, وہ وش کر. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ, ابھی ہم نے پڑھا تھا, and Allah warns you, and warns you Allah from himself, اور ڈراتا ہے اللہ آپ کو اپنی ذات سے, اپنی سزا سے. سوری. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ,
वल्लाहु, और अल्लाह रऊफ बिल इबाद। रऊफ, रऊफ का लफ्ज हमने पढ़ा था मोस्ट कंपैशनेट, सबसे ज्यादा शफकत करने वाला। हमने देखा भी था कि मोहब्बत करने वाला क्या होता है, शफकत करने वाला क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, कंपैशनेट क्या होता है। तो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा कंपैशनेट है अपने बंदों के साथ, अपने गुलामों के साथ, अपने स्लेव्स के साथ, अपने बंदों पर बहुत ज्यादा वो शफकत करने वाला है। तफसीर देख लेते हैं आया नंबर 30 की, कि अल्लाह ताला ने पहले वार्निंग दे दी ऑलरेडी, ठीक है ना। अब उस वार्निंग को अल्लाह ताला हमारे सामने उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसको बड़ा करके बता रहे हैं। किस चीज से बता रहे हैं? वार्निंग तो दे दी, यौम तजिदु, उस दिन से जिस दिन हमें एक इमेज है ना डे ऑफ जजमेंट का, हमारे सामने पूरी पिक्चर बता रहे हैं। एक ऐसा दिन है जिसको कोई एस्केप नहीं कर सकेगा, वो ऐसा दिन है जिसका सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, यानी उस दिन हमारे सामने पूरी तरह प्रेजेंटेड होगा फुल और डिटेल्ड अकाउंट में जो कुछ हमने अच्छाइयां की, जो कुछ हमने बुराइयां की, इंक्लूडिंग यू एंड मी, हम सबको। और हम क्या होगा, हम उसमें ट्रैप होंगे, वी विल बी कॉर्नर्ड, देयर विल बी नो वे कि हम उसमें से निकलें। जब हम अपने अच्छे अमाल को देखेंगे इंशाल्लाह वी विल बी डिलाइटेड and we will not be able, लेकिन we will not be able to increase them। हम खुश होंगे, बहुत खुश, हाँ ये मैंने किया था, ओ हाँ ये किया, ये तो बहुत अच्छी बात थी, काश मैं और कर लेती। वो काश और कर लेती वो गुजर चुका होगा वक्त। जब हम अपनी बुराइयों को देखेंगे जो हमें याद नहीं होंगी, हम कहेंगे उफ ये मैंने क्या किया था। वी विल बी सैड एंड वी विल बी फियरफुल, हमें डर भी लगेगा, हम सैड भी होंगे, गमगीन भी होंगे, लेकिन हम उसको डिसोन नहीं कर सकेंगे। ना हम अपनी नेकियों को बढ़ा सकेंगे, ना हम अपनी बुराइयों को डिसोन कर सकेंगे। देखिए एक सेंटेंस है या दो सेंटेंस आप कह लें, इसको अपने जहन में रख लें, हम सब, मैं और आप। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उस वक्त हम ये आरजू करेंगे, ईच सोल वो ये विश करेगा, ये आरजू करेगा कि मेरे और इस ईविल के दरमियान एक बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाए। और इसके दो इंटरप्रिटेशंस हैं उस विश के, जो लोग बताते हैं। इट कैन हैव टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। एक ये है कि इट मे बी टेकन टू मीन कि एवरी सोल विल विश कि जो जजमेंट है, डे ऑफ जजमेंट जो है वो बहुत डिले हो जाए, वो दिन के लिए वो दिन ही डिले हो जाए, मेरा हिसाब किताब ही डिले हो जाए, और या वो खत्म ही हो जाए, फार रिमूव्ड हो जाए, इतना दूर हो जाए कि उसका आने का कुछ नजर ही नहीं आए कि वो दिन आने वाला। यौम तजिदु नफ्स, ये नहीं आ जाए, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन, तो ये ना आ जाए। एक ये है, और दूसरा ये है कि ऑल्टरनेटिव ये है कि जो हमारा ईवल था, जो मैंने पहले बताया कि जो हमारा ईवल था, जो हमने बुराई की थी, वो हमसे दूर हो जाए। मैं ज्यादातर इसी पे जाती हूँ, मुझे लगता है कि जजमेंट तो हमें पता है कि आना ही आना है, लेकिन फिर भी चूंकि दो इंटरप्रिटेशंस थे, मैंने कहा दो तफसीर में दो चीजें हैं, तो लेट मी जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड ऑफ द आया में फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, रिपीटेडली वार्निंग कर रहे हैं कि अल्लाह के गुस्से से अपने आप को बचाओ। वयुहज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह के गुस्से से अपने आप को बचा के रखो। एट द सेम टाइम इस दफा अल्लाह नहीं कह रहे हैं कि भाई लेकल मसीर, हमने उनके पास वापस जाना। अल्लाह ताला हमें एक होप दे रहे हैं, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद एंड ही इज द मोस्ट कंपैशनेट, सबसे ज्यादा शफकत करने वाले हैं अपने बंदों को। दिस मीन्स कि अल्लाह ताला हमारे लिए क्या चाहते हैं? क्या अल्लाह ताला हमें सजा देना चाहते हैं छोटी सी चीज पे, बड़ी सी चीज पे? नहीं, अल्लाह ताला मोस्ट मर्सीफुल है, रहमान अर रहीम, अल गफूर अल गफ्फार। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हमें मौका दे रहे हैं, देयर इज स्टिल अ चांस फॉर अस, देयर इज स्टिल होप फॉर अस। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना, डोंट डिस्पेयर। अल्लाह से मांगते रहें, तौबा करते रहें, और अपने आप को बेहतर करते रहें। मेरे ख्याल है स्टॉप हियर, दो आयतें रह गई हैं हमारी इस हिस्से को खत्म होने में, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मैं नहीं कर सकूं क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन काफी लंबी है, तो विल स्टॉप हियर, ठीक है ना। कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कर ले। मुझे दो अनाउंसमेंट करनी थी। एक अनाउंसमेंट ये कि नौरीन के पास एक प्रोजेक्ट है, उन्होंने बताया पाकिस्तान में एक फैमिली है, मैंने अभी पूरी डिटेल वो नहीं पढ़ी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को वो एक राइटअप जो है वो भेज देती हूँ कि आप लोग भी सदका जारिया में हिस्सा लेने की कोशिश करें, मैं भी हिस्सा लेने की कोशिश करूँ। पाकिस्तान है, यहाँ से अगर हम
$10 بھی بھیجتے ہیں تو زیادہ ہو جاتے ہیں, $100 بھیجیں گے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر آپ بھیج سکتے ہیں تو میں اکاؤنٹ نمبر وغیرہ سب کچھ نورین نے مہیا کیا ہے. I will post it if you want, I can post it in the group, تاکہ آپ لوگ بھی اور ہم بھی اس میں حصہ لے سکیں. ایک قرآن کے لیے سمجھے کہ مدرسہ ہے, قرآن کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, فیملی والوں نے اس کے لیے زمین دی, کچھ لوگوں نے اس کو ہیلپ کیا, سب کیا, کافی بن چکا ہے, دیواریں وغیرہ سب بن چکی ہیں, اندر کی چیزیں کچھ بن رہی ہے ماشاءاللہ. جو خاتون ہیں ان کو بھی, آپ کو پتہ ہے نورین کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی جب تک اس کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ بندی صحیح پڑھا رہی ہے. تو وہ بندی جو پڑھانے والی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہم یہی کہیں گے اپروو بائی نورین. تو اگر آپ پیسے دینا چاہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو اچھی بات ہے, صدقہ جاریہ ہوگا, تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. دوسرا مینا شنیزئی ہے جو افغانی ہے, جس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کافی پیسے جمع کیے تھے, کسی کی شادی تھی, افغان کپل کی شادی تھی, پھر وہ بتا رہی ہیں کہ ایک افغان کپل کی شادی, جو بھی تھوڑا بہت بھی دے سکیں, وہ بھی غریب ہیں, وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اس کے لیے بھی اگر آپ لوگ پیسہ کچھ بھی دینا چاہیں تو مینا کو ڈائریکٹلی دیتے ہیں. اور یہ بھی آپ جو ڈائریکٹلی ہے اگر یا نورین سے پوری تفصیل لے لیں, اور اگر ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں تو وہ بھیج دیں. باقی یہی تو اناؤنسمنٹ تھی. ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے خطبہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں آپ کی گاڑیاں کھڑی ہے, اس کو ہٹانے, اسٹار بکس کے سامنے سے گاڑی ہٹانے وہ ٹو ہو جائے گی. آج مجھے وہ فیلنگ ہو رہی ہے. چلیں کوئی سوال پلیز. یہ جو ہے ان تتقوا منہم تقہ, ہاں, تتقو اور تقا دونوں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے سے ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے جب بھی تتقو کا ہم اتقا کا لفظ جب ہم یوز کرتے ہیں, اتقا یعنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا فرام دی اینگر آف اللہ, اسی لیے کہتے ہیں نا یہ متقی ہے, یہ تقوی ہے. یعنی اس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا فیئر آف اللہ, اس کو کہتے ہیں کانشیسنس آف اللہ, کہ اللہ کے ناراض ہونے سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, شیلڈ کریں اپنے آپ کو. تو اپنے آپ کو وقع یقی, اپنے آپ کو ایک شیلڈ اپنے ارد گرد ڈالیں, یعنی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. پہلے بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ تقوی کا جو ایک میننگ ہے, بہت خوبصورت طریقے سے کسی نے بتایا تھا کہ اگر آپ کسی خاردار جگہ پہ سے گزر رہے ہیں جہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں, تو آپ اپنے پینٹس کو, اپنی اسکرٹس کو, یا اپنے عبایا کو, یا اپنی شلوار کو آپ ایسے اٹھا لیتے ہیں اوپر, اٹھا کے ایسے بچ بچ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ کانٹے نہ لگ جائیں. تو اسی طرح جو بھی چیز اللہ کو ناپسند ہے تو اس چیز سے ہم اپنے آپ کو اس طرح بچا کے چلیں. تو ایک تو بچانا تو ہے, وہ بچانا شیلڈ بھی ہے, اپنے آپ کو بچانا بھی, اور تقا کا مطلب ہے یعنی ایز اے پریکاشن, یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ اگر اس وقت آپ ایسے سچویشن میں اگر آ گئی ہیں کہ وہاں پر اگر آپ نے سارے غیر مسلمان ہیں اور وہ آپ کو تنگ کریں گے یا کچھ وہ کریں گے, تو آپ ان کے سامنے, آپ کو پتہ ہے نا قصہ بھی ہے جو فرش شہید تھے ان کے بھی ہے, اور عمار بن یاسر کا بھی ہے, اور وہ سب وہ قصے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایسی سچویشن میں آئے تو آپ منہ پہ آپ کفر کر سکتے ہیں ان کے سامنے, یا آپ ان کے ساتھ الائنمنٹ دکھا سکتے ہیں. کفر کی بات تو یہاں نہیں ہو رہی ہے, یہ وہ دوسری آیت ہے. یہ آیت یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہاں آئی ایم ود یو, وہ بتا سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پریکٹیکلی آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو قاہ means precaution, and فرسٹ والا جو تتقو ہے یعنی کہ for your own اپنے آپ کو بچانے کے لیے. so minhum is among them, among them, okay, from them, from them, min from them. کہ اگر آپ سے ان کو کوئی ڈینجر ہے, تقاہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ بھی ہے, میں نے یہاں لکھا ہوا ہے, تقاہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈینجر کوئی ہے, اس ڈینجر سے یو نیڈ پروٹیکشن. تو ایز اے پروٹیکشن there's a danger from them, so as a protection آپ verbally بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تھینک یو. صحیح. اور کوئی سوال پلیز؟ میرا ایک سوال تو ہے. السلام علیکم. جی, تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن آپ بعد میں دے دیجیے گا, کیونکہ میں اس چیز میں نا ابھی بہت کنفیوز ہوں. کسی کی آواز آ رہی, آئی تھنک شبیر ہے. امینہ مائک بند کر دیجیے. جی, اور یہ لمبا سوال ہے چھوٹا ہے؟ اس کا ہاں تھوڑی مجھے ڈیٹیل چاہیے, آپ بعد میں دے دیجیے گا. میں صرف سوال لمبا ہے, جواب تو ڈیٹیل میں ہوگا. سوال اتنا لمبا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے اس میں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جب نفس کی بات آتی ہے, روح کی بات آتی ہے, نفس مطمئنہ کی, یا آپ کا جو لوامہ ہے,
और फिर शैतान भी है। लवामा। All those things, मतलब हम कैसे उसको कहेंगे कि अभी यानी कि ये हमारे नफ्स की बात है या ये शैतान की तरफ से है, और क्या नफ्स और रूह एक ही है? मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का भी थोड़ा सा सुना था, लेकिन somehow मैं इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। कैंडी को ये सूरत ये जब आएगी ना, नफ्सुल लवामा का लफ्ज आएगा ना कुरान में, वो ठीक है तो ना? बहुत एंड में आएगा, आखिरी जुज में। चले आप मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती हैं तो तो चले, ठीक है, अगर है तो मैं इसको बहुत शॉर्टकट में फिर इंशाल्लाह बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ, Next मुझे time थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए इस कॉन्सेप्ट। कि 3 किस्म के नफ्स है ना बेसिकली, वो नफ्सुल क्लियर है मुझे, लेकिन द थिंग इज कि जब हम रूह की भी बात करते हैं, ठीक है, और फिर जब शैतान की तरफ से हमें ये भी पता इस्लाम में चलता होता है ना कि आपका नफ्स असल में ट्रेन होता है और शैतान की तरफ से नहीं है, एंड देन द अदर थिंग्स हम कहते हैं कि शैतान की तरफ से, एंड देन फिर आपकी रूह भी हो जाती है। बात कहते हैं कि जो जात है वो रूह है और नफ्स जो है वो रूह की दूसरी किस्म है। ऑल दोज थिंग्स, मुझे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे। मैं थोड़ा सा इस सवाल को ना और वाजे करके ना आपको करूंगी, हाँ, ठीक है? आप वाजे करिएगा, व्हाट आर यू क्लियर अबाउट, ये मुझे बता दीजिए। नफ्से लवामा और वो जो है नफ्से मुतमइना, उसके बारे में तो मैं क्लियर हूँ, लेकिन जब मुतमइन्ना तो पता है ना, लवामा पता, अम्मारा नहीं पता। जी हमारा का भी पता है, तो लेकिन ये कि वो जब शैतान रूह और नफ्स की बात आती है तो उसमें मैं फिर थोड़ा कंफ्यूज, मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है? ठीक है, आप मुझे आराम से पूरा क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना इंशाल्लाह ताला। सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक होगा, ठीक है? ठीक है, मुझे आप वार्न कर रही है। नहीं, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा जवाब देती हैं तो अच्छा ही होगा ये इंशाल्लाह। आप उसमें डाल देती हैं ना, क्या करें, बहुत ज्यादा रिसर्च में, और आपको पता है फिर मैं लगी रहती हूँ, लगी नहीं नहीं, रहती आप रिसर्च ना कीजिएगा, जो भी आपको इजीली मिल सके मुझे। हूँ। ठीक है इंशाल्लाह ताला। चलें, और कोई सवाल प्लीज, वी स्टिल हैव टाइम। मैंने जल्दी रोक दिया था क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो एंड तक जाएगा फिर, और वो मेरा प्लान था आज खत्म करने को, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उसको जरा अच्छी तरह समझाऊं। वो मेरी बहुत फेवरेट से फेवरेट आयत है और उसको मैं इनजस्टिस नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ। चलें आगे प्लीज, कोई सवाल, अभी है टाइम हमारे पास। जज़ाकल्लाह खैर, we'll see you inshallah on Tuesday. आज क्या है, आज ट्यूसडे है ना? नहीं, आज थर्सडे है, ट्यूसडे I'll see you on Tuesday inshallah. इंशाल्लाह I'm इंशाल्लाह। running for my class right now. Okay. My fitness class. तो टेक, और फिर अमीना पिछला वाला सुन लेना प्लीज, दैट जरूर, वाज इंशाल्लाह। समथिंग दैट यू हैड क्वेश्चंस अबाउट। Inshallah. आरफा आपने सुन लिया ना पिछला? जी जी मैंने सुन लिया। चलिए, अरे अल्लाह का। चलो, सईदा कैसी हैं आप, आपसे बात नहीं हुई? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, सबसे बात हो गई थी, आप रह गई थी। जी, थोड़ी लेट God आई bless थी। you. Stay safe, stay blessed, whatever. चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आप बहुत अच्छा बताती हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बताती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला कबूल कर ले, बस ये बताएं। आमीन आमीन। है ये वो है, लेकिन असल तो अल्लाह ताला है कि कबूल कर लें और अल्लाह ताला आसान कर ले। और मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी आखिरी सांस तक बस मुझसे दीन का सही इल्म अता फरमाता रहे और मुझसे दीन का काम लेता रहे। और यही मेरी दुआ होती थी कि अल्लाह मुझे दीन का सही इल्म अता फरमाए, दीन का सही इल्म, क्योंकि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बचपन से पढ़ी, इतनी किताबें पढ़ी, और फिर उसके बाद पूरा इल्म नहीं था बहुत सारी चीज़ों का, और फिर भी मैंने कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया था। बहुत साल पहले की बात है, मैं 30s में थी तब मैंने शुरू किया था, 35 साल हो गए। लेकिन फिर ये कि उस वक्त मैं जो तफसीरें पढ़ती थी उसी तफसीर को, और फिर उसमें जो बातें होती थी ज़रूरी नहीं था कि वो सही था, लेकिन वो मैं बताती रहती थी, और फिर जो इधर उधर बुक्स में से पढ़ा वो भी बताती थी, वो भी इस्लामी बुक्स थी, और उसमें बहुत सारी बिदअतें थी, तो कुछ चीज़ें शिर्क तक भी हो जाती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है शिर्क थोड़ा थोड़ा समझ आता था, लेकिन बिदअत में पता ही नहीं चलता था क्या सही है क्या गलत है। और अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, थाईलैंड में पढ़ाती थी बैंकॉक में, लेकिन उसमें बहुत चीज़ें मैंने ऐसी बता दी थी जिससे बाद में मुझे पता चला, क्योंकि मैं जब कनाडा आई तब फिर मुझे अस्मा ने बताया कि ये एक शरिया का कोर्स है और आप हमेशा कहती हैं, तो ये आपके लिए एक मौका है। तो देखें, एक एक लफ्ज़ का सवाब अस्मा को मिलता होगा, मेरी बहू को। उस वक्त मेरी बहू नहीं थी, उसी वक्त हमने बात पक्की की थी उसकी, 1999 की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैंने वो शरिया का पूरा जब कोर्स कर लिया तो मेरी समझ में आ गया कि कितनी चीज़ें हम बिद्दत के तौर पे करते थे और कितनी चीज़ें इस्लाम का हिस्सा थी ही नहीं।
تو اللہ کا شکر ہے، تو وہ دین کا علم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور آخری سانس تک ہم سیکھتے رہیں گے. نورین تو مجھے سکھلا کے ہی چھوڑتی ہے نا، نہیں چھوڑتی ہے اس کے بغیر، تو وہ بھی سب سیکھنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ نورین ہے. تو آخری سانس تک اللہ ہمیں دین کا علم، صحیح علم عطا فرماتا ہے، علم نہیں صحیح علم عطا فرماتا ہے، اور ہم سے دین کا کام لیتا رہے، چاہے ہم پڑھ رہے ہیں چاہے پڑھا رہے ہیں، دونوں سیم ہے. بس اللہ تعالیٰ جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی پڑھانے کی توفیق دے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.